So today we'll discuss maxima and minima. Okay. So there are several methods. We'll discuss one by one, right? But before starting, we'll discuss what is local minima, local maxima, and what is global maxima, global minima. Okay. So first of all, local maxima. Local maxima means it's very local, right? Okay, we cannot say anything about the global thing. Global means overall, but it's local. Okay, means in the surrounding. Let's say like this: we have a point. So this point P, in its close neighborhood. Close means always very close. The interval is very close. Okay. So in its close neighborhood, okay, we cannot just define means slightly right, slightly left. This is the minimum value. Right hand side will be greater, left hand side will be greater. Means this is the minimum value, local minimum. Right? So this is the definition of local minimum. Same way, if we say local maxima, right? So again, same way. Let's say this is the point x2, right? And this point q is the point of local maxima, means in its close neighborhood, on the right side of this, on the left side of this. Okay, values are less than this value, right? So this is the maximum out of its close values, right? Close means very close, just right and just left. Okay, so if in its neighborhood this is the maximum value, then we call the local maxima. If in its close neighborhood this is the minimum value, then we call the local minimum, right? And global, as the term we are using, global, things have to be clear, means overall. Okay, in the given complete interval, overall, globally means overall, that is the maximum value. For example, we have some function from this point A to this point B. Okay, from this point A to this point B. Let's say we have a function like this. So you can see here, this point, at this point, this is the maximum value overall in this interval, in the given interval A to B. This is the maximum value. Means there has to be some point C for which FC is always greater than equal to Fx. Right? Value can be at 2 points, but no value can be greater than this value. No value can be greater than this value. Then this is global. Same goes for global minimum. I think that's clear. Means overall minimum value. Overall minimum value. Okay, no value can be less than that value for a given interval. Right? So same way you can write global minimum. We can simply say minimum value of the function. For this we can simply say maximum value of the function. We can simply use maximum value of the function for global maxima. We can simply use minimum value of the function for this global minimum. Okay, so these are the terms. First of all, these terms have to be clear to you, right? Now we'll come to the methods, how to find.
So first method, which is very common, first method, okay, that is second derivative test. Second derivative test. This is very common. Almost I think everybody knows about this method, because this you must be using from at least 11th class in physics. Okay, second derivative test. What we do is we have the function y is equal to fx. क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, f dash x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, राइट. यहां से हमें क्या मिलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स. स्टेशनरी. Why we call these points as stationary points? Because by the terms things have to be clear. Stationary points, these are stationary. Why? Because dy by dx is 0. Dy by dx means y is not changing with respect to x. That has become stationary. Y is not changing at that point. At that point, remember, at that point dy by dx is 0, right? That's why we call it. अदरवाइज सबको पता है कि dy by dx को 0 पुट करते हैं और हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स, जिनको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स और इसमें क्या डिफरेंस है वो अभी हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल राइट नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स इन द सेंस दोज ससेप्टेबल पॉइंट्स जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है. मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी नहीं हो सकता एक्चुअली, वो भी हम डिस्कस करेंगे. इवन दैट इज ए क्रिटिकल पॉइंट. मैक्सिमा या मिनिमा और नथिंग, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम विल डिस्कस. तो ये फाइंड करते हैं. इसके बाद क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, हमें कैसे पता चलता है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. d2y by dx स्क्वायर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, उसकी वैल्यू हम चेक करते हैं. जब लेट से हम x1 पे चेक कर रहे हैं, x1 पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, राइट. तो अगर ये पॉजिटिव आ जाती है तो हम बोलते हैं वहां पे क्या है, मिनिमा है. और अगर ये नेगेटिव आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, वहां पे मैक्सिमा. दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, राइट. क्यों आती है पॉजिटिव मिनिमा पे, क्यों आती है नेगेटिव, वो अभी सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, राइट. बट दिस इज वेरी कॉमन मेथड, सबको पता होगा, बट सिंपल है, बट इसके अपने लिमिटेशंस है, राइट. क्या लिमिटेशंस है, बिकॉज दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव, ओके. so function has to be differentiable up to second derivative. function has to be differentiable. function अगर differentiable नहीं है तो ये बिल्कुल applicable नहीं होगा. so the condition is function has to be differentiable, okay, up to second derivative, up to second derivative, ठीक है. अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है बट सेकंड नहीं करता है तो भी ये वर्क नहीं करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज हम सेकंड डेरिवेटिव को यूज करते हैं यहाँ पर, राइट. तो इसके लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. फंक्शन हैज़ टू बी डिफरेंशिएबल अप टू सेकंड डेरिवेटिव, बिकॉज जैसा हमें पता है बहुत सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते, बहुत सारे फंक्शन जो है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएबल होंगे, सेकंड टाइम नहीं होंगे, राइट. दोज थिंग्स, ओके. सो दीज आर द रीजंस. तो ये तो सबको क्लियर है. आई थिंक इसमें किसी एग्जाम्पल का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. अब जब ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, जब ये वर्क नहीं करेगा तब हम क्या करेंगे, राइट, कौन सा मेथड यूज करेंगे. एंड सेकंड थिंग, मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करते हैं जनरली. वी डोंट प्रेफर दिस मेथड, ओके. we prefer this method, which is the first derivative test. First derivative test, okay. but इसके भी limitations हैं. limitation is first derivative
ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव, या अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं भी है, ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं भी है तो फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस इज द क्राइटेरिया। ओके, कंटिन्यूटी इज द क्राइटेरिया, फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूस। विल सी ये मैथड क्या कहता है। जैसे ये फंक्शन है, लेट्स से फंक्शन इज लाइक दिस, ये राइट, ये क्लियर हो गया होगा व्हाई वी हैव टेकन दिस। यहां पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, दिस इज द इंटरवल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, एफ डैश एक्स को फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट में होता है स्टेशनरी पॉइंट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ भी स्लोप 0 है, यहाँ भी स्लोप 0 है, यहाँ भी स्लोप 0 है। ओके, राइट, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, नाउ यू विल से कि ये तो हमें नहीं मिलेगा, राइट, वेरी ट्रू, ये हमें नहीं मिलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स जिसमें स्टेशनरी पॉइंट आते हैं, मींस x1 x2 x3, जहां पे dy by dx क्या है, 0 है, प्लस दोज पॉइंट्स जहां पे dy by dx नॉट डिफाइंड है और नॉट डिफाइंड। ठीक है, और नॉट डिफाइंड, तो हमें ये भी पॉइंट मिलेगा, ये भी मिलेगा, बिकॉज यहां पे क्या है, नॉट डिफाइंड। Okay, so these are the critical points. Critical points are the points where dy by dx is 0 or not defined. अब what is this first derivative? ठीक है, condition is function has to be continuous. तो first derivative test के according क्या कहता है कि f dash x का साइन कैसे चेंज हो रहा है उस पॉइंट पर, जस्ट चेक दैट f dash x का साइन कैसे चेंज हो रहा है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, जैसे हम x1 की बात करें, ओके, इससे पहले f dash x मतलब स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। इसके बाद क्या है स्लोप, इस पॉइंट के बाद स्लोप क्या है, नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, राइट। तो अगर स्लोप हमारा किसी पॉइंट पे प्लस से माइनस हो रहा है, मतलब वो पहले इंक्रीज कर रहा था फिर वो डिक्रीज करने लगा, इंक्रीज से डिक्रीज करने लगा, मतलब उस पॉइंट पे क्या हुआ होगा, मैक्सिमम, राइट। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस मैक्सिमम। ठीक है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव, लेट्स से हम ये पॉइंट कंसीडर करें x2 कंसीडर करें, तो पहले स्लोप क्या है, नेगेटिव, डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, इसके बाद स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव, हियर द स्लोप इज पॉजिटिव। तो अगर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट, तो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम। ठीक है, थिंग्स आर क्लियर फ्रॉम हियर। ओके, यहां पे क्या है, मिनिमम, राइट। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये होता है। ओके, तो इसमें हमें क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है एफ डैश एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले क्या था, बाद में क्या था, वो प्लस से माइनस हुआ है या माइनस से प्लस हुआ है। प्लस से माइनस हुआ है तो मैक्सिमम, माइनस से प्लस हुआ तो मिनिमम। ओके, अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए था, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में मैक्सिमा कहाँ पे होना था, मिनिमा कहाँ पे होना था। ओके, तो उसके लिए शॉर्टकट हमारे पास ये है कि प्लस टू माइनस का मतलब हो गया PM, और माइनस टू प्लस का मतलब हो गया माइनस टू प्लस N2, राइट। सो थिंग्स आर लाइक दिस।
पीएम और एमपी से हमें याद रखना है, ठीक है, पीएम और एनपी, तो क्लियर हो जाएगा। पीएम मतलब ऑब्वियसली मैक्सिमम और एमपी का मतलब ऑब्वियसली छोटा होता है मिनिमम, ठीक है। इतना सब पॉलिटिक्स सबको क्लियर होता है, राइट, कि पीएम क्या होता है और एमपी क्या होता है। ओके, सो दिस इज द वे टू रिमेंबर। ओके, तो ये हमारा शॉर्टकट है याद करने के लिए, राइट। अब यहां पे बात करें एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट की बात करें। एक्सपोर्ट पे ऑब्वियसली पॉइंट हमारा क्या था, फंक्शन हमारा क्या था, डिफरेंशिएबल नहीं था, बट नाउ हियर वी सी, इससे पहले स्लोप क्या था, नेगेटिव था, नेगेटिव था, इसके बाद स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो स्लोप क्या हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दिस इज वेरी यूजफुल। हम इसको ही मैक्सिमम टाइम इसी को यूज करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, दिस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बट द कंडीशन इज द फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूअस। ओके, वन थिंग मोर, लेट्स से तुम्हें ग्लोबल मैक्सिमा चेक करना है, इसमें ग्लोबल मैक्सिमा यहां पर, ओके, या ग्लोबल मिनिमा चेक करना है। तो ग्लोबल मैक्सिमा के लिए ग्लोबल मैक्सिमा राइट, ग्लोबल मैक्सिमा के लिए हम ये सारे मैक्सिमा के पॉइंट्स कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये राइट, ये तो हम कंपेयर करेंगे, साथ में एंड पॉइंट्स को भी कंपेयर करेंगे, राइट। हो सकता है फंक्शन जो है जहां पे एंड हो रहा है वो वैल्यू क्या हो गई हो, मैक्सिमम हो गई हो। ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके, मैक्सिमा के जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, लेट्स से ये F1 आ रहा है, ये F2 आ रहा है, राइट, इसको तो कंपेयर करेंगे ही, F1 F2, साथ में बाउंड्री पॉइंट्स को भी देखेंगे, FB एंड दिस FA। यहाँ पर ये ग्राफिकली हमें क्लियर है, बट हमें दोनों ही बाउंड्री पॉइंट्स क्या करने, चेक करने, कंपेयर करने, ठीक है। इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दीज वैल्यूज, दैट विल बी कॉल्ड द ग्लोबल मैक्सिमम, और सिंपली मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सेम गोज फॉर ग्लोबल मिनिमा के लिए हम क्या है, ये जो भी वैल्यू है F3 F4, ठीक है, F3 F4 कंपेयर करेंगे, साथ में बाउंड्री पॉइंट्स को भी कंपेयर करेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स FA एंड FB, उनको भी देखेंगे। हो सकता है फंक्शन हमारा ऐसे निकल गया, ऐसे आ गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ओवरऑल मिनिमम वैल्यू हमें बाउंड्री पॉइंट पे मिल गई, ऐसा पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। सो ऑलवेज कंपेयर द बाउंड्री पॉइंट्स आल्सो while finding global maxima or global minimum or simply minimum value, right? So this is the first derivative test, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये भी। ओके, अब बात करेंगे हम थर्ड मेथड की, जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा तब हम क्या करेंगे। ओके, कंटिन्यूअस नहीं है तो हमारा ये भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी वर्क नहीं करेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी वर्क नहीं करेगा इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। Okay, so now third method for discontinuous function. Discontinuous function क्या करना है, राइट। एक तो सिंपल मेथड हमारा यहाँ पे ये होगा बाय यूजिंग लिमिट यूज करके, ठीक है। अगर हमें x इक्वल टू सी पे चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है,
तो अगर ये मैक्सिमा है सी पर, राइट, तो ये अपने क्लोज नेबरहुड में क्या होगा, सराउंडिंग में, ओके, मैक्सिमम वैल्यू जो भी इसका क्लोज नेबरहुड का मतलब क्या हो गया, सी प्लस एच एंड सी माइनस एच, वेयर एच टेंडिंग टू 0 प्लस, राइट। और सिंपल वर्ड्स में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विल बी ग्रेटर देन राइट हैंड लिमिट सी प्लस एंड दिस एफ सी विल बी ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड लिमिट सी माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। ये राइट हैंड लिमिट से भी बड़ा है और लेफ्ट हैंड लिमिट से भी बड़ा है, ठीक है, मतलब सी पे जो वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट से भी बड़ी है और लेफ्ट हैंड लिमिट से भी बड़ी है, तो यहाँ पे सी पे क्या होना चाहिए, उसको मैक्सिमम होना चाहिए, ओके। सेम इज फॉर लेट्स से मिनिमा है, ठीक है, किसी पॉइंट पर डी पर या सी ले लो, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, लेट्स से एट x इक्वल टू सी वी हैव मिनिमा, और अगर मिनिमा है तो एफ सी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए हमारे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से, क्लोज नेबरहुड में क्या होना चाहिए, वो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ओके, हैज टू बी लेस देन द राइट हैंड लिमिट, हैज टू बी लेस देन द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। तो हम लिमिट से फाइंड कर सकते हैं, ओके, लिमिट से फाइंड कर सकते हैं या फिर वी कैन यूज ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं, अगर हमें ग्राफ पता है तो हम ग्राफ से चेक कर सकते हैं, अदर वे ग्राफ, ओके, ग्राफ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के लिए, ओके, बहुत टाइप से हो सकता है, लेट्स से दैट इज लाइक this is the point x equal to c, right, तो c पर क्या हो रहा है, c अपने राइट हैंड लिमिट से बड़ा है और अपने लेफ्ट हैंड लिमिट से भी क्या है, बड़ा है, सो दिस इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू c, ओके। ग्राफ लेट्स से ऐसा आ रहा है, ऐसा, ओके, दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू सी, तो ऑब्वियसली क्या है, ये राइट हैंड लिमिट से भी छोटा है और लेफ्ट हैंड लिमिट से भी, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जस्ट लेफ्ट में, वो क्या होगी, लिमिट इससे बड़ी होगी, राइट, तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमम, ओके। यू कैन हैव ए केस लाइक दिस जहां पर फंक्शन हमारा कुछ ऐसा है, दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू सी, जहां पे हमें फाइंड करना है, तो c पर क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट बड़ी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बड़ी है, राइट, राइट हैंड लिमिट भी बड़ी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बड़ी है, ये क्या है, ओवरऑल मिनिमम वैल्यू है, ये क्या है, मिनिमम, we can have a function like this, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके, we have a function like this, और c पे हमें बताना है क्या है, राइट, क्या हो रहा है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट तो कम है बट राइट हैंड लिमिट क्या है, ज्यादा है, राइट हैंड लिमिट कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट कम है, तो ओवरऑल क्या है, ये कुछ बीच में वैल्यू है, ना ही क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है, ना ही मिनिमम वैल्यू है, ओके, सो वील हैव neither maximum nor minimum, okay, no more, right,
so you can have the graph like this. ठीक है, so many ways. Okay, we have a function like this. This is the point. See, C पे वैल्यू ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये है थोड़ा कम, राइट हैंड लिमिट ये है वो भी कम, राइट? तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम. Okay, we can have a function like this. Okay, यहाँ पे क्या होगा? राइट हैंड लिमिट कम है बट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? ज्यादा है. पढ़िए, ठीक है? राइट हैंड लिमिट क्या है? वो कम है. सो वी हैव नथिंग. ओके, ऑल्दो इस टाइप के प्रॉब्लम्स एक दो बार ही आए हैं जहां पे हमारा फंक्शन क्या था? डिफरेंशिएबल नहीं था या डिसकंटिन्यूअस था. बट थिंग्स हैव टू बी क्लियर टू यू. ओके, क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा या कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हमें क्या करना है? यू कैन यूज ग्राफ, यू कैन यूज सिंपली लिमिट. लिमिट चेक कर सकते हो कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है. ओके, सो मेनली वी हैव these things. Now we'll do problems, we'll solve some examples. Okay.